Okay, students. So in this video, we are going to discuss about the class test that we had today. It was of two chapters, chapter number 7, fractions, and chapter number 10, geometry. In this video, I will discuss about each and every step that you should write in each kind of question and how to present your answers. Make sure to present your answers during the exam in a similar manner. Please avoid using the shortcut methods so that you can score maximum. Now, the first thing that you have to keep in mind is that you have to read the questions. Whatever question is given to you, you have to read that question very carefully. The first mistake that you students are doing, being a student, you are doing is that you are not reading the question completely. Okay, so you have to read the questions very carefully and completely, starting to the end. For example, if you read it in mind, read it loud in mind. Okay, this is basic, write your name, roll number. This you know that you have to do. This is compulsory, fine. After this, convert improper fraction into mixed fraction. Word by word, प्लीज इसको रीड करिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज आप सोचते रहेंगे इसमें करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, साफ पता चल रहा है. कन्वर्ट करना है किसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इनटू किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ठीक है, सो द फर्स्ट नंबर इज 40 अपॉन 13. This is improper fraction. We have to change it into the mixed fraction. So we will simply divide this. This will be your first step. Fine. Write 40 and here it is 13. Okay. Now you have to think, in 13's table, is there any number that is near to 40 and less than it? It should be less than it. So 13 2s are 26. 3s are 39. So 39 is very much closer to the 40. So you'll write 3 and it comes 3, 9. And we'll simply subtract, we get the remainder as 1. Very neatly you will do it. So in neat manner, if you present your answers, you will tend to make low mistakes. Okay, or maybe no mistakes. Fine. If this kind of a scenario happens, make a line in between to differentiate that you are using this portion for this question only. Fine. Now let us write what is the quotient here. Here it is 3. Write the remainder. Here it is 1. Write the divisor. It will be 13. Fine. After this, write mixed fraction is equals to quotient, remainder, divisor. Fine. To write this will give you more marks. Okay. Is equals to, what is the quotient here? It is 3. ध्यान रहे मिक्स्ड में हमेशा ये वाला जो फ्रैक्शन बार हम ड्रॉ करेंगे, ये बीच में ड्रॉ होना चाहिए होल नंबर के. होल नंबर ऐसे बीच में आना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं लिखना होता. फाइन. रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 30. ठीक है, सो दिस इज सॉल्व्ड. बहुत सिंपल है, एक तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, सेम मेथड वी आर गोइंग टू डू हियर. 13, 5, 2, 10 माइनस करेंगे, विल गेट 3. हियर द क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 3 एंड डिवाइजर इज 5. फाइन. मिक्स्ड फ्रैक्शन. जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे उतना खुद के लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे. ठीक है, फुल फॉर्म्स लिखो. एग्जाम के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म्स को भूल जाओ, फुल फॉर्म्स में लिखो सारी चीजें. आंसर. फाइन. दोनों क्वेश्चंस हो गए, विद इन अ मिनट हो गए, है ना, 1 मिनट के अंदर अंदर हो गए. क्यों? क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली लिखा है हर एक चीज़ को. जितना क्लियरली लिखोगे उतना जल्दी भी होगा, प्रेजेंटेबल भी होगा और मिस्टेक्स भी नहीं होंगी. फाइन. नाउ रीड द क्वेश्चन. फाइंड द डायामीटर. हमें समझ आना चाहिए क्या बोला जा रहा है. फाइंड द डायामीटर मतलब हमें डायामीटर फाइंड करना है. हमें क्या फाइंड करना है? डायामीटर.
ऑफ अ सर्कल। ऐसा नहीं होता कि जब भी सर्कल का क्वेश्चन आ गया तो हमें सर्कल ही ड्रॉ करने के लिए आया है, जैसा कि आज आप लोगों ने क्लास में किया, विच इज़ वेरी मच रॉन्ग। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। फाइंड द डायमीटर, साफ साफ लिखा है कि डायमीटर ढूंढिए किस चीज़ का, सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डायमीटर is equals to twice of radius and put it in a box because this is of half marks. डायरेक्टली हाफ मार्क्स तो ये लिखने से ही मिल जाएंगे, लेकिन तब अगर हमें डायमीटर फाइंड करना, अगर रेडियस फाइंड करना तो क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ डायमीटर, है ना, क्योंकि अगर ये इसका डबल है तो इसका हाफ होगा। ठीक है, रेडियस का डबल होना चाहिए डायमीटर। अब हम लिखेंगे डायमीटर, क्योंकि हमें डायमीटर ही फाइंड करना है तो डायमीटर इसी साइड रहेगा, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोबारा लिखिए डायमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसके आगे लिख दो, ये हमारा आंसर है। इतना सा क्वेश्चन था कि डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, खत्म। आई डोंट नो व्हाई यू वर ड्राइंग द सर्कल, सीधा सीधा लिखा है फाइंड द डायमीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है या नहीं इसको चेक करने के लिए मैंने आपको क्लास में सिखाया था एक मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें सीधा सीधा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम पहले लिखेंगे 4/12 सेम नंबर, यहाँ लिखिए 12/36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो इसका क्रॉस बना लीजिए, फिर जो बाद वाली साइड होती है वहां पर एरो लगा दीजिए, इज इक्वल्स टू। ठीक है, चेक कर रहे हैं हम इक्विवेलेंट है या नहीं। हमने ये बनाया, इसके बाद हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू लगा दिया, बाद वाली साइड पे एरो लगाने हैं। अब देखो ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की साइड पे जा रहा है तो इसको जाने दो, ऊपर जाने दो। ऊपर जाएंगे तो ऊपर कौन से दो नंबर हो जाएंगे, 12 एंड 12। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये नीचे आ रहा है नीचे, 4 नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ एरो है, इसका मतलब नीचे कौन से दो नंबर हो जाएंगे, 4 एंड 36। अब आप इसको देखिए, 12 मल्टीप्लाई 12 क्या होगा हमारा, 144। ठीक है, आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो, 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 144। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 36, इसको आप माइंड में भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 4 6 आर 24, 3 आर 12, 144। दोनों सेम आ रहे हैं, सो अगर दोनों सेम आते हैं तो इक्विवेलेंट होते हैं, सेम नहीं आते तो इक्विवेलेंट नहीं होते। ठीक है, सो द टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, खत्म, बस। अगर आप ये सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट इज़ अ 2 मार्क क्वेश्चन बेटा, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में आप येस और नो लिखोगे तो आपको उसका 0 मार्क मिलना चाहिए, क्योंकि येस और नो तो एक तुक्का हो गया उसके बाद कि आपने येस और नो लिख दिया, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो द टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, वो इक्वल है। फाइन, नेक्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जो भी फ्रैक्शन हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 4/7 गिवन है। अब आज आपने लोगों ने क्या किया, आपने यहाँ पर इतने जहाँ तक बनता जा रहा है बनाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। हमें सबसे पहला तो 0 ही मार्क करना है अपनी लाइन पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कितने पार्ट्स बनाने हैं, 7। इसका मतलब हमें 7 तक काउंट करना है। ठीक है, 0 से फर्स्ट आ गया तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, टोटल 7 पार्ट्स है हमारे फ्रैक्शन में, हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हर एक के नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 7, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 7। ठीक है, हर एक का लिख दिया। स्टेप्स याद करिए आपको करना क्या है, फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको साफ पता चलेगा 4/7 कहाँ आ रहा है, ये रहा। तो आप इसको पहले सर्कल करिए कि ये हमारा आंसर आया, और इसको मार्क करके लिखिए पॉइंट नंबर ए।
अगर आप सिर्फ यहाँ पर सीधा लिख दोगे ए, तो थोड़ा इधर और थोड़ा उधर के चक्कर में गलत हो जाएगा। इसको सर्कल कर दीजिए कि हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर शो करिए कि यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हमारा 7/7 है। इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या बन जाता है 7/7 1। कोई भी नंबर अगर ऊपर और नीचे सेम है फ्रैक्शन में तो वो क्रॉस होकर क्या बन जाता है 1, ठीक है। तो हम इसको इक्वल्स टू 1 भी लिख देंगे। फाइन। नेक्स्ट अब हमें 9 तक जाना है। 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर से डिनोमिनेटर हम सबका ऐड कर देंगे, अपॉन 9 लगा दीजिए। इससे इजी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था, सीधे सीधे 2 मार्क्स थे। अब 2 आ रहा है यहाँ पर, देखो कहाँ है, ये रहा 2/9। ये आ गया हमारा आंसर। इसको मार्क कर दिया हमने कि हमारा 2/9 आ गया। हमने 9/9 इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना था, तो फ्री के मार्क्स थे आपके। सॉरी। इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीगन विद 6 साइड्स। 6 साइड्स वाले पॉलीगन का नाम क्या है, ये हमने क्लास में किया हुआ है। दिस इज हेक्सागन। दिस इज हेक्सागन। मेक श्योर कि स्पेलिंग ठीक हो। एक ही वर्ड लिखना है तो उसकी स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। इन 21/13, 21/13, 21 क्या है, हमारा न्यूमरेटर है। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं न्यूमरेटर, ओके। रेडियस इज इक्वल्स टू डैश ऑफ डायमीटर। अब देखो हमने अभी पीछे भी लिखा था कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डबल है तो अगर मैं पूछूँ रेडियस से डायमीटर कैसे पता चलेगा। डायमीटर अगर मुझे गिवन है तो रेडियस कैसे आएगा। देखो यहाँ पर था 14 थी रेडियस, तो डायमीटर 28 हो गया। अगर मुझे पता है कि डायमीटर 28 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ डायमीटर। अगर यहाँ पर हमें इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द डायमीटर की जगह फाइंड द रेडियस दिया होता, तब हम यही वाला फॉर्मूला लिखते। तब हमें ये लिखना पड़ता रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। फिर उसके बाद हम लिखते रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई, फिर जो भी हमें डायमीटर गिवन होता हम वो लिखते। ये दोनों चीज़ें हमें करनी है। एक तो ये वाला फॉर्मूला डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस, और एक ये वाला फॉर्मूला। अगर हमें रेडियस फाइंड करनी होगी तो हमें यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस फाइंड करनी है तो हमें यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद 7/3 इज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। हमें बताना है दोनों में से किस टाइप का है ये। तो ये कौन सा है, ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। अब यहाँ पर टिक करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, राइट इट हियर। बहुत टाइम मिलता है पेपर में लिखने के लिए, एक्स्ट्रा भले ही लिखाओ लेकिन कम ना रह जाए। 2 क्वेश्चन में चॉइस है, टाइम है तो दोनों कर दो, खाली मत बैठो, दोनों कर दो। आप लोग बाद में बोलते हो मैम मुझे लगा कि इसमें भी चॉइस है। भाई टाइम है, खाली बैठे हो, कर दो। एक्स्ट्रा ही होगा, कुछ खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कर लो, कम मत रखो उसको कि मेरी तरफ से कम रह गया। बाद में कोई फायदा नहीं होता बोलने का कि मुझे लगा चॉइस है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़ा नंबर पहले और फिर छोटा नंबर, बड़े से छोटा नंबर। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। देखो हमारे न्यूमरेटर सारे सेम हैं। न्यूमरेटर सेम होने का मतलब होता है, अब हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है यहाँ पर 7/5, 5 आ गया सबसे छोटा डिनोमिनेटर, तो वही क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा हो गया 7/5। इसके बाद अब कॉमा कॉमा मत लगाइए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा नंबर फिर छोटा फिर छोटा। तो बोलो ना कि ये सबसे बड़ा नंबर है, बोलो, साइन लगाओ बीच में, ये बड़ा नंबर है। इसके छोटा नंबर इससे कौन सा आएगा, 7/8। इससे छोटा नंबर क्या आएगा, 7/10। एंड द स्मॉलेस्ट वन हियर इज 7/13, ठीक है। हर चीज़ को शो करो, एक्सप्रेस करो, आंसर्स में ही एक्सप्रेस कर दो कि क्या कहना चाहते हो। आज एक ने क्या किया, इसके ऊपर 1 2 3 4 लिख दिया कि ये मेरा सीक्वेंस है। अरे भाई स्पेस दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है, अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो।
स्पेस में लिखिए उस चीज़ को कि क्या दिया हुआ है, कैसे लिखना है, हर चीज़ आपको प्रॉपर उसके अंदर मेंशन करनी है। आप हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो लिखने से ही सिर्फ, और अगर जितना अच्छा एक्सप्रेस करोगे उतना इजीली आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। नेम द मार्क्ड एंगल। यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है, हमें साफ पता चल रहा है कि एक ही एंगल है। ठीक है। 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, BAC या फिर CAB। सिंपल। एंगल का नाम लिखना है तो हम एंगल का साइन तो ड्रॉ करेंगे ही ना पहले। एंगल BAC और एंगल CAB। सिंपल। इसके लिए आपको कोई अलग से चीज़ नहीं करनी थी, इट इज़ गिवन इन द फिगर इटसेल्फ। ठीक है। इसके बाद नेम द वर्टेक्स। वर्टेक्स का नाम लिखना है हमें। वर्टेक्स होता है कोना, सिर्फ एक ही कोना है इसके अंदर, दैट इज ए। सो सिंपली राइट ए, मोर देन इनफ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो पॉइंट ए। बोथ आर करेक्ट। फाइन। इसके बाद देखो, नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल की जो आर्म्स हैं, मैंने आपको कहा था ये 2 इसकी आर्म्स हैं। ठीक है। ये आपको क्या नजर आ रही है, वट इज इट? इट इज अ रे। रे को लिखने का तरीका होता है एक, हम पहले लिखेंगे AB, हमारी फर्स्ट रे है AB, और उसके ऊपर हमें रे का सिंबल भी बनाना है, कॉमा द सेकेंड रे इज AC। आप CA नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम एरो कहाँ बना रहे हैं, इस साइड, और यहाँ पर एरो किसके पास बना है, C के पास, तो एरो कहाँ जा रहा है, C के पास। आप इस एरो की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, एरो आपको इधर ही लगाना है, तो आप इसे देख कर लिखेंगे कि C यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आएगा, एरो के पास कौन से है। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास टेस्ट। मेक श्योर यू डू इट वेल। हर चीज़ बहुत अच्छे से सोच के समझ के फिर करो। ऐसा नहीं कि बस भागते जा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्वेश्चन को जब तक प्रॉपरली फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक आप रीड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं उसमें क्या करना है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छे से रीड करो, स्टेप बाय स्टेप करो, एक्स्ट्रा लिख दो। अगर आपको लग रहा है ये वाली लाइन लिखूं कि नहीं, वो लिख दो, मत सोचो दोबारा, लेकिन छोड़ो मत उसको, और ध्यान से करो हर चीज़ को, हर चीज़ का फॉर्मूला लिखो, सब कुछ लिखो, और जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं आप उसे भूलो मत। आज बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया मेरे सामने बैठ के क्लास में, बहुत सब ने, और जब हम बोर्ड पे करते हैं तब सब लोग बहुत अच्छा आंसर देते हैं। क्यों? तब तो मैम का पेन होता है, मैम लिख रही होती हैं, तब सबको आंसर आता होता है। लेकिन अब जब अपना लिखने का टाइम आया, अपने पेन से तो नहीं लिख रहे हो। ध्यान से लिखो, सोच के लिखो, हर चीज़ को एक्सप्रेस करो कि क्या कहना चाहते हो, किस ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो इनको। ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई डायमीटर, इसको भी याद रखो। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में डायमीटर ही दिया जाए और बोला जाए रेडियस फाइंड करिए, हो सकता है रेडियस दिया जाए और बोला जाए डायमीटर फाइंड करिए, दोनों में से जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़े वो यूज़ करिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा मत बनाते जाइए कि 7 के बाद 8 9 10 बनाते जा रहे हैं, 15 18 तक बना दिया आज आप लोगों ने। क्यों बना दिया जब ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की? जिस चीज़ को जैसे प्रेजेंट करना है वैसे प्रेजेंट करिए, उस चीज़ को अच्छे से करिए कि जिस चीज़ को मार्क करना है उसको डबल मार्क करो, पॉइंट से भी मार्क करो और सर्कल भी करके दो। यहाँ पर =1 लगा के लिखो कि पता चले आपको ये चीज़ पता है। ठीक है। अच्छे से करोगे, सोच के करोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है।